Welcome to my class. I hope you all have opened your English book, class 8th, chapter 2nd, The Tsunami. In this chapter, we will come to know about the disaster caused by tsunami. We have different kinds of experience-based story which writer shared here from different people and from different places. So let's start. Look at the map of the Andaman and Nicobar given here. Andaman Nicobar Island. This is Andaman Island and this is Nicobar Island. So now read sentences below. Rewrite the incorrect ones after some statements are here. So you have to read the statement and find find whether they are correct or not with the help of the video with the help of the images given here. Kachal is an island. So let's find out where is Kachal. It is here and it is an island. Island means a piece of land which is surrounded by water on all sides. You can see here all the side of this particular land, Kachal, is surrounded by water. So yes, it is correct. It is the part of Andaman group of island. So no, it is from the Nicobar Island. So this statement is incorrect. So with the help of these images, you can try to solve whether these statements are right or not. We will move to the next topic. A tsunami, we will pronounce it tsunami. T would be silent. Tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. आप सभी ने सुनामी का नाम सुना होगा. सुनामी है क्या? तो सुनामी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर भूकंप के कारण उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को हम सुनामी के नाम से जानते हैं. On 26 December 2014, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and the Nicobar Island and the Tamil Nadu coast, where are some stories of courage and survival. So 26 दिसंबर 2004 की रात को सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों में जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जो तटीय सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर सुनामी आई थी जिसने अपना बहुत ही भयानक रूप दिखाया था. तो जो लोग इस सुनामी में बच गए या उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनके करेज, उनके साहस की और उनके संघर्ष की कहानियों का जो कलेक्शन है उसे इस चैप्टर में बताया गया है. आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि ये होता क्या है, सुनामी क्या है या किस तरीके से आई होगी. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर you can easily understand the disaster caused by tsunami. ये देखिए कितनी बुरी तरह से कितनी ऊंची लहरें उठी थी समुद्र में कि उसके समुद्र के किनारे जो तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह से तबाही हुई थी. कई लोग आज भी लापता हैं. तो चलिए हम पढ़ते हैं. स्टोरी 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. So अंडमान निकोबार से ये सारी कहानियाँ ली गई हैं.
इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल जो अभी मैंने आपको आइलैंड दिखाया, वहाँ पर एक मैनेजर रहता था जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थे। His wife woke up at 6 a.m. and because she felt an earthquake, Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. क्या होता है कि जो इग्नेशियस रहता है, उन्होंने उनकी वाइफ सुबह 6 बजे सोकर उठती हैं और अचानक से अपने हस्बैंड को, इग्नेशियस को जगाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में भूकंप के झटके महसूस किए थे। और इसके साथ ही इग्नेशियस ने क्या किया, जो टेलीविज़न सेट होता है उसको, टीवी जो थी उसे उठा करके अपने घर की मेज़ में रख दिया, ताकि जब अर्थक्वेक की वजह से वाइब्रेशन हो तो टीवी में कोई भी तरीके की टूट फूट ना हो। और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत तेज़ी से घर की बाहर की ओर भाग आते हैं। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Tremors मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन। और जब वो बाहर की ओर आते हैं, समुद्र के किनारे उनका घर था, तो वो क्या पाते हैं कि कंपन तो रुक गई है, लेकिन समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, उन्होंने उसको उठते हुए देखा। In this chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brothers and rushed in the opposite direction. क्या हुआ था, इसी आपाधापी में, भागम भागी में, उसके जो 2 बच्चे रहते हैं अपने नाना और मामा का हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में भागते हैं। मतलब जहाँ से समुद्र था उसकी ओर ना भागकर उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा में भागते हैं। He never saw them again. और उसने अपने उन बच्चों को सुनामी आने के बाद दोबारा कभी नहीं देखा। His wife was also swept away. और इसमें उसकी वाइफ भी बहकर चली गई। Only the 3 other children who came with her were saved. और केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच गए थे। Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of island. अब संजीव क्या करते थे निकोबार आइलैंड में, वो पुलिसमैन थे। He somehow managed to save himself. वो किसी तरीके से अपने आप को बचा पाए थे, अपनी पत्नी को भी और अपने बेटी को भी, from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John. अब उनके फ्रेंड की जो वाइफ थी, जॉन की जो वाइफ थी, अचानक से उनकी बचाने की आवाज़ जब उन्होंने सुनी, उनके चीखने की आवाज़ सुनी, जो गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी वाइफ की आवाज़ सुनते हैं तो ये उसे बचाने के लिए जाते हैं, टू रेस्क्यू हर। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। उन्होंने अपनी फैमिली को तो बचा लिया, लेकिन जो कुक था, रसोइया था, उसकी वाइफ को बचाने के चक्कर में वो भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब जो मेघना थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और उनके साथ कम से कम 77 पीपल और थे जिनके साथ वो उस सुनामी की लहरों में बह चुकी थी। She spent 2 days floating in the sea holding on the wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead बट दे डिड नॉट सी हर। क्या होता है, अब एक चूँकि ये सर्वाइवल की कहानी, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइटर ने यहाँ वही बताया है कि जब वो मेघना से मिलते हैं और मेघना ने उनसे अपनी स्टोरी शेयर की, तो मेघना बताती है कि वह 2 दिन तक लकड़ी के एक दरवाजे को समुद्र में पकड़कर तैरती रही, क्योंकि लकड़ी डूबती नहीं है, और उसने उसका सहारा लिया और उसने अपने ऊपर से 11 बार जो हेलीकॉप्टर्स बचाने के लिए आते थे उनको उड़ते हुए देखा, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी हेलीकॉप्टर उस बच्ची को नहीं देख सका। उसे एक लहर तट के किनारे लेकर आई थी। शी वॉज बॉट टू द शोर बाय द वेव एंड शी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज।
और वह स्तब्ध अवस्था में समुद्र के तट पर चलते हुए लोगों को मिली थी। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in the Port Blair, where her father had a petrol pump. अब अलमास जावेद जो कि पोर्ट ब्लेयर में रहने वाले थे और कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ने वाले थे, उनके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन ननकरवी आइलैंड, ननकरवी आइलैंड में उनकी माँ का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द सुनामी टुक प्लेस ऑन 26 of December 2004। 26 दिसंबर 2004 की बात है। तो रात को 25 दिसंबर की रात को ये सभी लोग क्या कर रहे थे? क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय सुनामी आई। व्हेन द टर्मोस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, the family was sleeping. Almas' father saw the sea water recede. He understood that the water could come up rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब क्या होता है यहाँ पर? जब सुबह भूकंप आता है तो अलमास जावेद, उसकी पूरी फैमिली सो रही थी। तो जो अलमास के पिता थे, उन्होंने समुद्र की लहरों को धीरे से वापस जाते हुए देखा। तो वो समझ गए पानी हल्का सा पीछे जा रहा है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि पानी अपनी दुगनी और तीन गुनी रफ्तार से वापस जरूर आएगा। इसलिए उन्होंने सभी को जगाया और समय रहते सुरक्षित स्थान पर भागकर आ गए थे। एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। और जब वे दौड़ रहे थे तो उनके नाना के सिर में, जो अलमास जावेद थे, उनके नाना के सिर में कोई चीज़ से वो टकरा गए और वो वहीं गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और जब उसके पिता उसके नाना की हेल्प करने के लिए दौड़े, उसी समय एक बहुत जाइंट राक्षस के रूप में या दैत्य के आकार की एक लहर आई और दोनों को बहा करके ले गई। Here you can see the picture after the disaster of tsunami. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they were too washed away. अब क्या होता है? अलमास की माँ और जो मौसियाँ थी, चूँकि ये लोग अपने नाना नानी के यहाँ गए हुए थे, तो जो उसकी मैटरनल आंट थी, वो सभी और उसकी माँ नारियल के पेड़ के पत्तों को पकड़कर खड़ी हुई थी। चूँकि नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, तो उनकी हेल्प ली थी और वो पुकार रही थी हेल्प के लिए। एक लहर ने उस जो पेड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ था, जड़ से ही उखाड़ दिया और वे सब उसके साथ बह गई। Almas saw a long log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamrota. From there, she was brought to Port Blair. अब क्या होता है? अलमास ने भी लकड़ी के एक बड़े से लट्ठे को या तने को तैरते हुए देखा। वो उस पर बैठ गई। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी और होश जब उसे आया तो वो एक कमाटो जो एक हॉस्पिटल था, उस जगह का हॉस्पिटल, वहाँ पर एडमिट थी। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अब क्या हुआ? ट्रॉमास्टेड मतलब सदमे में थी। अब चूँकि जब वो थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो वो इस घटना के विषय में किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। वो अभी भी सदमे में थी। So guys, some comprehension check questions are given here with the help of the explanation which I explain you in the video. You may take the help of this explanation and try to find out the answers
PDF will be sent to you. We will start the next part in our next video. Till then, take care, stay safe.